Good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on important changes in GST with effect from 1st April 2022. And on this subject, our very respected Honorable CA Vimal Jain ji with us. I welcome you, sir. I also welcome Anand Duaji, Devendra Singh ji, and all the attendees on behalf of Pusa Road CP Study Circle. As you know, there is no need to introduce our Vimal Jain ji, but still my duty to briefly introduce him for the sake of the new member who joined in large. He is a member of Institute of Chartered Accountants of India since May 1994 and a member of Institute of Company Secretary of India since December 2006, along with a bachelor degree in law. Also is a qualified SEP and has more than 21 years of experience in indirect taxation and specializes in all aspects of goods and service tax, value added tax, central sale tax, central excise, custom, foreign trade policy, a special economic zone, export oriented unit, export import law. He has hands-on experience in providing opinion and advisory services, carrying out diagnostic review of business operations, process review, structuring of business model, undertaking litigation services at all appropriate forum, including CSAT, representation before the RTRU, CBEC, DGFT, etc. for various matters concerning to trade, industry and commerce. He is the chairman of the Indirect Tax Committee of PhD Chamber of Commerce, chairman of the Corporate Advisory Committee of IPEM Group of Institution, member of Indirect Tax Committee of SOCHAM, FICCI, special invitee of Indirect Tax Committee of ICI, ICSI, member of eminent faculties in Indirect Tax Committee of ICI, ICSI, ICMA. He was the keynote speaker at Guinness World Record made by ICSI in litigation taxation lesson on GST, which was attended more than 4,500 participants, breaking earlier record of Japan. There's a big clapping for Sir. And Business Leader Award from MIT School, Noida. Best Speaker Award from NIRC, ICI, and he got a lot of awards. His clients includes, वैसे तो पढ़ना नहीं चाहिए, but still my duty to sir कुछ लोग नए मेंबर जरा पता लगे सर. His clients include JMC, Lloyd, Coca-Cola, Dedicated Freight Corridor, Flair, Approver, Apollo Tire, Radisson Hotel, JK Tire, Divisha, Maruti Suzuki, Prasar Bharati, TCIL, Ken, Sangrila, LG, Intel, Honda, Perfect Pen and Stationery, Auto Meters Allied Limited, Multan, NTPC, Max Healthcare, Kajaria, and Cipra. And above all, he is a very religious and is very social, and with the grace of the God, he got the position of Ahujaji as a direct tax in indirect tax within a very short period. And everybody knows in the professional fraternity him and loves him. Sir, this is the brief profile of our Sir Vimal Jain ji. With this, and again I welcome you and over to you, sir. At the outset, let me thank Sri Rajesh ji. He is one of the dynamic and active members for this study circle. I'm finding my two good friends as panelists today, CA Anand Duaji and CA Devendra Singh ji. So having good friends around, and those who are not visible, but still they are joining today and they are part and parcel of today's webinar. ऑब्जेक्टिव तो यही होता है राजेश जी, हम जो करें कुछ अच्छा करें और अच्छा ऐसा हो जो हमें भी अच्छा लगे और औरों को भी अच्छा लगे. राइट. कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा, मजा नहीं आता. मजा तो तभी आता है जब सामने वाले को अच्छा लगे. ठीक बात है. अब हम पता नहीं क्या क्या बोल जाएं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब सामने वाला बोले यार इतनी बातें बोल के गया, सारी समझ में आ गई, तभी वो उसका सक्सेसफुल जो मोमेंटोज हम देते हैं ना, उसका मोमेंटो बनता है. Nevertheless,
ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि हम सबको सेटिस्फाई करें, आज भी कोशिश वही रहेगी। तो आज मुझे जो कहा गया है जीएसटी इंपॉर्टेंट चेंजेस फ्रॉम अप्रैल 1, 2022, कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जिसका कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट है, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आने वाले हैं, जो फाइनेंस बिल 2022 का पार्ट थे। तो मैंने कुछ 5-6 इशू आज आपके सामने डिस्कस करने हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज जिसमें लिटिगेशन भी चल रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस भी हो रहे हैं, और वे फॉरवर्ड जब हम अप्रैल 1, 2022 की बात कर रहे हैं तो वे फॉरवर्ड उसमें और भी बदलाव आ रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो मैं आप सबके सामने लेना चाहता हूं, एंड आई वांट दैट आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे। वेबिनार का प्लस और माइनस क्या है मालूम है? प्लस तो ये है कि देवेंद्र सिंह जी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, फिर भी उनको मुझे सुनना था, तो उन्हें डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके एक जगह आइडेंटिफाई कर ली कि भाई ठीक है मैं यहाँ बैठ के सुनूंगा। ये वेबिनार का फायदा है, पर वेबिनार का एक नुकसान भी क्या है मालूम है? अटेंड तो कर ली पर कितना सुना, वीडियो ऑफ, फिर क्या मालूम बंदा है या नहीं है, सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, अगर आप 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा मुझे देने को तैयार हैं तो आपको मजा बहुत आएगा। आपको कहीं नहीं लगेगा कि हमने बुक्स निकाल के लॉ के प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हम तो ऐसे करेंगे जिसमें प्रैक्टिकली आज आप जूझ रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि आगे हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट भी करूंगा, और डेफिनेटली यस आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से उसको ऐड ऑन करने की भी कोशिश करूंगा। सो रजत टंडन जी हैं, उन्होंने कहा सुन रहे हैं सर। तो रजत जी मैंने नहीं कहा कि आप नहीं सुन रहे, मैंने तो कहा कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप सब ज्वाइन कर चुके हैं और प्रॉपर तरीके से मेरी बात समझेंगे। पहला टॉपिक है, आजकल बड़े नोटिस आ रहे हैं सर, जी सर। और नोटिस किस बात के आ रहे हैं कि हमने जो GSTR 3B में क्रेडिट ली, प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए उसे सारे लॉ जानने पड़ेंगे। हम तो चलिए स्पेशलाइज्ड हो गए आज, तो हम अगर GST करते हैं तो GST ही करते हैं, लेकिन जो हमारी फिटर्निटी है उनके लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि कपिल जी को भी सुनना है, आहूजा जी को भी सुनना है, मौका लगा तो बिमल जी को भी सुनना है, और उसमें से ग्रहण करना है और फिर अप्लाई करना है। तो बहुत चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आप ही की लैंग्वेज में आप ही के हिसाब से कुछ टॉपिक आज प्रेजेंट करने वाला हूं। आजकल बहुत नोटिस आ रहे हैं सर, ये प्रैक्टिस एरिया भी है, आपके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी है। और नोटिस किस बात के डिपार्टमेंट भेज रहा है? नोटिस इस बात के भेज रहा है कि जो क्रेडिट आपने GSTR 3B में ली, वो क्रेडिट आपके GSTR 2A या 2B में नहीं आ रही, मैच नहीं कर रही, डिफरेंस है। जो हमारे पास ये नोटिस आ रहे हैं, और डिपार्टमेंट हमसे क्या कह रहा है, उस नोटिस में कह देता है विद इन 7 डेज आप इसका रिप्लाई करो। अगर आपने विद इन 7 डेज रिप्लाई नहीं किया ना, तो देन दे विल टेक नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप मेरे से बेहतर जानते हैं। कुछ मेरे साथी जो हैं जो डिपार्टमेंट से भी सुन रहे होंगे मुझे, तो आप मुझे इस तरह से मानिए, मैं आज ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि मैं झगड़ा लगाना चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज हम लॉ की पोजीशन को समझें कि लॉ कहता क्या है। तो सबसे पहले चैट बॉक्स में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो नोटिस इतने सारे हमारे पास आ रहे हैं, एंड दैट इज ऑन मिसमैच ऑफ क्रेडिट। मैंने 3B में मान लीजिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट ले ली है GSTR 3B में, पर मेरे GSTR 2A या 2B में मान लीजिए 80,000 रुपए आ रही है, 80,000, 20,000 रुपए का डिफरेंस है। मैं आपसे पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं, आपको क्रेडिट क्या 2A और 2B से मैच करना है? पहला सिंपल क्वेश्चन,
2A या 2B से मैच करना है? चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे यस, वाई, नो मतलब नो, कि मुझे मैच नहीं करना, मैं तो बिंदास क्रेडिट लूंगा, बिंदास क्रेडिट लूंगा। तो चलिए, बहुत सारे साथी हैं हमारे, साथी लोगों ने आंसर करना भी स्टार्ट कर दिया। देखिए चैट बॉक्स में सारे लोग आंसर यस कर रहे हैं। एक देवेंद्र सिंह जी हैं, उनने कहा कि 1/1/2022 से यस, उससे पहले ना कर दिया उनने। तो राजेश चौधरी जी हैं, उनने मना किया, नहीं हम मैच नहीं करेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने क्या कहा? मैच Yes. करना है, मैच करना है। राजेश जी ने भी आवाज लगाई, हाँ हाँ मुझे मैच करना है। अब मैं आप सबको एक, हम बोलते हैं ना गुरु मंत्र, गुरु मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज को समझना है तो उसकी थोड़ी तह तक तो जाना पड़ता है और अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करना पड़ता है। पूजा गर्ग जी हैं, वो बोलते हैं यस, क्रेडिट 2A से मैच होनी चाहिए, 2A से मैच होनी चाहिए। सबने यस, मैक्सिमम आप लोग चैट बॉक्स में एक दूसरे को देख पा रहे होंगे, ऐसा नहीं कि चैट बॉक्स अकेले मेरे लिए है, मैक्सिमम लोगों ने यस लिखा है उसके ऊपर। अब मैं आपको आंसर देता हूं, ध्यान से सुनिए, और लास्ट में हम सब मिलके एक जजमेंट पास करेंगे। तो मैं आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लेके जा रहा हूं। शिव खत्री जी हैं, उनने कहा एक छोटा सा नो उन्हें डाल दिया, नोन है। एक हमारे शर्मा, रेणु शर्मा जी हैं, बोलते हैं बेटर टू मैच rather to go into litigation। सो रेणु शर्मा जी ने तो जीएसटी क्रेडिट के लिए लिखा है। आजकल वो मैरिज के टाइप की भी चीज हो गई है, बेटर टू मैच। मैंने लाइटर नोट पे कहा, कोई पर्सनल किसी भी चीज को नहीं लेगा। सो रेणु जी आप समझ गए, क्योंकि ये कुछ नाम ऐसे हैं जो मेरे साथ बहुत कनेक्टेड हैं। चलिए अब आंसर करते हैं इसका आंसर, और जजमेंट हम सब मिलके करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। देखिए जीएसटी में क्रेडिट लेने के लिए अतुल जी भी हमारे साथ पैनलिस्ट में आज जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर वो हमारी बात का नोट बना रहे होंगे, हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि जीएसटी में क्रेडिट लेने के लिए प्रोविजन क्या है। देखिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जुलाई 1, 2017 से जब आया तो हमें 4 कंडीशन बताई गई थी। 4 कंडीशन, आप अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगी। अब वो 4 कंडीशन क्या है, और आपको ध्यान रखना हमने क्वेश्चन क्या स्टार्ट किया था, हमने क्वेश्चन ये स्टार्ट किया था, क्या मुझे अपनी क्रेडिट जो मैंने 3B में ली है उसको 2A या 2B से मैच करना है, यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को माइंड में रखे वो आंसर्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ने 4 कंडीशन दी। 4 कंडीशन। पहली कंडीशन, एज ए बायर आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, क्वाइट ऑब्वियस। सेकंड, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिए हो, यानी आपके पास एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो गया हो। तीसरी कंडीशन, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो। सो ऐसा केस हो सकता है कि एज ए बायर आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया पर सप्लायर ने जमा नहीं कराया, तो आपको क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? लॉ तो कहता है कि आपको क्रेडिट तभी मिलेगी जब आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट जमा कर दिया हो। चौथी कंडीशन है रेगुलरली फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। तो अगर आज आपको एंजॉय भी अगर करना है तो आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पोस्ट करूंगा तो उसके आंसर दीजिएगा। चौथी कंडीशन है रेगुलरली फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। ये प्रोविजन किसके लिए है, सप्लायर के लिए या रिसिपिएंट के लिए? रेसिपिएंट के लिए। अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप लोग बताइए कि ये प्रोविजन किसके लिए, सप्लायर के लिए या रिसिपिएंट के लिए? कोई अनुज जैन है, कई लोग हैं जो रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं। आशुतोष जी हैं, उनने कहा बोथ, उनने कहा झगड़े में फंसना ही क्यों, ऐसा आंसर दो को गलत हो ही ना सके, दोनों को जीएसटी रिटर्न भरना है। देखिए एज पर लॉ तो रिसिपिएंट ने
रेगुलरली जीएसटी रिटर्न भरना हो एज पर लॉ। तो 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब चारों कंडीशन में देख के मुझे बताइए कहीं पे 2A और 2B का रेफरेंस आया क्या? सर नहीं आया। नो नो, चारों कंडीशन में 2A 2B का कोई रेफरेंस नहीं आया। तो हमने जहां से स्टार्ट किया था, क्या जो क्रेडिट मैंने 3B में ली उसका 2A और 2B से मैच करना है क्या? तो नो, अभी तक तो नहीं आया। राजेश भाई, फाइनेंस एक्ट 2021, अब 22 की बात नहीं कर रहा, पिछली साल का जो बजट था एक और कंडीशन ऐड की गई, एक और कंडीशन। और वो कंडीशन क्या थी आप लोग ध्यान से सुनिए। वो कंडीशन ये थी कि जिस इनवॉइस और डेबिट नोट पे आप क्रेडिट ले रहे हैं वो आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखा दी हो, और वो रिसिपिएंट के जो एक ऑटो पॉपुलेटेड स्टेटमेंट है उसमें ऑटो पॉपुलेट हो गई हो, और उस स्टेटमेंट का नाम दिया जीएसटीआर 2B। उस स्टेटमेंट का नाम दिया जीएसटीआर 2B, यानी जिस इनवॉइस और डेबिट नोट पे आप क्रेडिट ले रहे हैं वो आपके सप्लायर विमल जैन ने जीएसटीआर 1 में चढ़ा दी हो, और जो आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो गई हो। तो पहली बार एक 2B का रेफरेंस आया, पहली बार आया। और ये जो क्लॉज जो फाइनेंस बिल 2021 का था, ये कब नोटिफाई हुआ मालूम है? 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को। और ये प्रोस्पेक्टिव क्लॉज था। तो मैंने आपको बहुत क्लैरिफाई कर दिया, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था, ये प्रोस्पेक्टिव था। अब 5वीं कंडीशन में ये निकल के आया कि हाँ वो क्रेडिट आपके 2B में दिखनी चाहिए। एम आई राइट? और ये क्लॉज कब नोटिफाई हुआ? 1 जनवरी 2022 से। तो एक बार फिर मैं आप सभी से पूछ लूं, क्या मेरी क्रेडिट 2A और 2B पे डिपेंडेंट है? तो आप सब मुझे यस एंड नो करेंगे, मैं बोलते जाता हूं, आप लोग यस एंड नो करेंगे। मेरी क्रेडिट 2B पे डिपेंडेंट है क्योंकि लॉ में प्रोविजन में 2B की बात रखी गई है। आप लोग सब एग्री करेंगे? यस कहिए पहले सब लोग। आप यस लोग यस, चैट बॉक्स में यस कहिए कि हाँ सर 2B की बात एक्ट में आई है तो 2B इंपॉर्टेंट है। और कब से इंपॉर्टेंट है? 1 जनवरी 2022 से, 1 जनवरी 2022 से, 2022 से। तो अब दो बातें हमारे लिए बहुत क्लियर हो गई, दो बातें बहुत क्लियर हो गई। कोई भी नोटिस डिपार्टमेंट कहीं से भी इशू करे, जब तक लॉ में उसका प्रोविजन नहीं है तब तक उस नोटिस को आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। डिपार्टमेंट चाहे कोई भी नोटिस आपको दे दे। तो पहला मैं कंक्लूड ये करूंगा कि देखिए मेरी क्रेडिट जो मैंने 3B में ली उसका 2A से कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं ऐसे भी कंक्लूड करूं कि ये जो 2A आया था ये बाय वे ऑफ रूल आया था, जीएसटी सीजीएसटी रूल आया था, और 2B भी जो आया था वो भी बाय वे ऑफ रूल आया था। बट प्रोविजन जो एक्ट का जो प्रोविजन होना चाहिए वो नहीं था। एक्ट का प्रोविजन सबसे पहले 5वीं कंडीशन 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव हुई। तो मैं ये कह सकता हूं प्रायर टू, आप लोग ध्यान से सुनिए और मुझे यस कहिएगा, प्रायर टू 1 जनवरी 2022 मेरी क्रेडिट जो मैंने 3B में ली है उसका ना तो 2A से लेना देना है ना 2B से लेना देना है। आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री कर, जो लॉ की बात है, एक दूसरी बात अलग है कि मुझे मैच कर लेना चाहिए, मुझे मिला लेना चाहिए, तो उस पर मैं बाद में बोलूंगा। पहले लॉ की पोजीशन पे आप मुझसे कह दीजिए हाँ सर 1 जनवरी 2022 एक इंपॉर्टेंट डेट है, उससे पहले 2A और 2B का कोई लेना देना नहीं है। एक बार आप चैट बॉक्स में यस लिखिए तो जिससे मुझे लगेगा आप मेरी बात समझ गए। चलिए सबने यस कह, सब यस कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच।
अब मैं आपको कुछ पॉइंट कनेक्ट करता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। देखिए, जब 1 जनवरी 2022 से 2B की बात अब इंपॉर्टेंट हो गई, तो प्रायर टू 1 जनवरी 2022 एक रूल 36 सब रूल 4 होता था, रूल 36 सब रूल 4। और वो रूल क्या कहता था, अगर आपको याद हो, जो 9 अक्टूबर 2019 से आया। कब आया? 9 अक्टूबर 2019 रूल आया, रूल, प्रोविजन नहीं था, रूल आया। ये 2A 2B भी बाय वे ऑफ रूल आए थे, प्रोविजन नहीं था। प्रोविजन तो फर्स्ट टाइम 1 जनवरी 2022 से नोटिफाई किया गया। तो रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता था? आनंद जी बड़े ध्यान से सुनिएगा ये वाला पॉइंट। वो रूल ये बोलता था कि मान लीजिए आपके 2A में कोई क्रेडिट नहीं आई, 2A में कोई क्रेडिट नहीं आई, तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके सप्लायर ने GSTR1 में इनवॉइस चढ़ाया नहीं होगा, राइट? इसलिए नहीं आई। तो रूल 36 सब रूल 4 ने कहा कि बिमल, जब आपकी क्रेडिट 2A में नहीं आ रही है, तो हम जो क्रेडिट आप लेते हैं उसके ऊपर कैपिंग लगा देंगे, पहले 20% की कैपिंग थी, फिर 10% की कैपिंग हो गई, रिड्यूस हो गई 1 जनवरी 2020 से, फिर 5% की हो गई 1 जनवरी 2021 से। और वो 5% किस पे कैलकुलेट होगी? जो एलिजिबल क्रेडिट आपके 2A में आ रही होगी। तो इसको ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे। एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल लूं जिससे आप अच्छी तरह समझ जाए। मान लीजिए 15 लाख की क्रेडिट आपने 3B में ली, 15 लाख रुपए की, एंड आई वांट कि आप सब मुझे सही आंसर देंगे। 15 लाख की क्रेडिट आपने अपनी बुक्स में ली, GSTR 3B में ली, आपके 2A में आ रही थी 10 लाख रुपए, आपके 2A में आ रही थी 10 लाख रुपए, तो मिसमैच कितने का रहा? 5 लाख रुपए का। रूल 36 सब रूल 4 ने कहा बिमल, ये 5 लाख की पूरी क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे। उन्होंने कैपिंग लगा दी 5% की। कब से? 1 जनवरी 2021 से। हम 5% मैक्सिमम देंगे जो एलिजिबल क्रेडिट आपके 2A में आ रही होगी। तो अब आप लोग सब आंसर मुझे कीजिए चैट बॉक्स में। 5 लाख रुपए की क्रेडिट जिसके इनवॉइस आपके पास हैं, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव भी कर लिए हैं, मान लेता हूं आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया, और आप रेगुलरली GST का रिटर्न भी भर रहे हैं। 5 लाख रुपए के लिए वो कितनी क्रेडिट आपको देगा? 5% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट कमिंग इन योर GSTR 2A। वो अमाउंट क्या होगा प्लीज बताइए? 10 लाख। राजपाल जी 75,000 कहां से आ गए? मैंने कहा जो 2A में आ रहा है। बंदन जी ये 25,000 कहां से आ गए? रजत टंडन जी 25,000 कहां से आ गए? 5% कैलकुलेट हम कहां से करेंगे? जो 2A में आ रहा है। 2 में कितना आ रहा था? 10 लाख आ रहा था, उसका 5% 50,000, यानी टोटल 10,50,000 की क्रेडिट आपको मिलेगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब इस रूल का कोई लेना देना है क्या? रूल ने तो कैपिंग लगा दी, पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में तो कोई प्रोविजन नहीं था कैपिंग का, कोई प्रोविजन नहीं था सर। तो मेरे हिसाब से रूल 36 सब रूल 4 इज अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसी लाइन पे जो नोटिस अभी डिपार्टमेंट इशू कर रहा है ना, कि आपकी क्रेडिट अगर 2A और 2B में मैच नहीं करेगी प्रायर टू 1 जनवरी 2022, दैट विल नॉट होल्ड गुड, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन एक्ट में नहीं था। और मैं नहीं कह रहा, एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बाल्को लिमिटेड का जजमेंट गया, बाल्को लिमिटेड, वहां भी प्रॉब्लम यही थी कि मिसमैच थी, 3B और 2A मैच नहीं कर रहा था। वहां पे सिंपल एक ही आर्गुमेंट लिया गया, मिलॉट 2A में देखने वाला प्रोविजन कभी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में था ही नहीं, जो कंडीशन है टू अवेल क्रेडिट। यानी आप प्रायर टू 1 जनवरी 2022 मेरी मैचिंग मिसमैचिंग की बात नहीं करेंगे। तो जो डिपार्टमेंट का लॉयर था ना, उनने क्या कहा मालूम है? नहीं मिलॉट,
यहाँ पे ना सेक्शन 41, 42, 43 भी है जो आईटीसी मैचिंग और मिसमैचिंग की बात करता है। तो जो बाल्को लिमिटेड का लॉयर था उनने कोर्ट को बताया, मिलॉट जो ये आईटीसी मैचिंग मिसमैचिंग की बात कर रहे हैं ना, ये तो इनने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया सर। जीएसटीआर 1, 2A, 2, 1A, जीएसटीआर 3, ये कभी इनने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो यानी अगर मैं 4 कंडीशन सेटिस्फाई करूं तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगी। अब आप लोग मुझे बताइए चैट बॉक्स में, प्रायर टू 1 जनवरी 2022 मेरे हिसाब से लीगली, क्योंकि बाय वे ऑफ रूल आप कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते, पहली बार जीएसटीआर 2B का रेफरेंस आया। मैं रेणु शर्मा जी की इस बात से सहमत हूं कि रेणु जी कहती हैं कि मैच कर लेना चाहिए, मैच कर लेना चाहिए, पर मैं तो ये कहूंगा कि प्रोविजन ही नहीं था। अब मैच कर लेना चाहिए तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं आज ये बताने के लिए, सर 2A इज नॉट डिपेंडेंट। कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। मैं आपका सप्लायर बन जाता हूं, आप सब मेरे बायर बन जाइए, सब मेरे बायर बन जाइए। अब मान लीजिए कि मैंने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस चढ़ाई, लेकिन आपकी जीएसटी नंबर नहीं चढ़ा पाया, आपकी बजाय आपके पड़ोसी की जीएसटी नंबर चढ़ा दी मैंने। हो सकता है ना आनंद जी, हो सकता है ना, मैंने माल आपको बेचा पर आपका जीएसटी नंबर नहीं चढ़ाया, रॉन्गली मैंने चढ़ा दिया आपके पड़ोसी का। आपके 2A में आएगा क्या? आएगा क्या आनंद जी, आएगा क्या? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, चैट बॉक्स में बताइए, आएगा क्या? No, not at all. नहीं आएगा। तो क्या क्रेडिट नहीं मिलेगी मुझे? तो क्या मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी ना, क्योंकि मेरे पास टैक्स इनवॉइस है जिसमें मेरा करेक्ट जीएसटी नंबर आ रहा है, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए हैं, सप्लाई ने 3B भी भर दिया था और आप रेगुलरली रिटर्न भी भर रहे हैं, तो मुझे तो 4 कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी थी। इवन दो 2A में नहीं आ रहा पर मुझे क्रेडिट मिलेगी, मिलेगी। दूसरा केस लेता हूं, अश्विनी जी जुड़ गए, अश्विनी जी से क्वेश्चन कर लेता हूं। अश्विनी जी मान लीजिए B2B सप्लाई थी, रजिस्टर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, मैंने B2C दिखा दी गलती से, सप्लायर ने गलती से क्या कर दी, B2C दिखा दी। आपके 2A में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी, मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगी। प्रायर टू 1 जनवरी 2022, प्रायर टू 1 जनवरी 2022 आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते, बट पोस्ट 1 जनवरी 2022, अब थोड़ा समझ लें, मान लीजिए ये दोनों गलतियां मैंने दोहरा दी, मैंने आपका गलत जीएसटी नंबर चढ़ा दिया, अब तो जीएसटीआर 2B डॉक्यूमेंट हो गया है 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2022 से। अगर गलत जीएसटी नंबर चढ़ा दिया तो आपके 2B में नहीं आएगा। अब आपको क्रेडिट मिलेगी पोस्ट 1 जनवरी 2022? क्रेडिट मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस और नो? चंद्र मोहन जी हैं, यस कर रहे हैं, नहीं मिलेगी सर, अब नहीं मिलेगी। अब 5वीं कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है कि ये क्रेडिट आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो रही हो, आनी पड़ेगी। यानी प्रायर टू 1 जनवरी में लीगली आर्ग्यू कर सकता था, बट पोस्ट 1 जनवरी कोर्ट बोलेगा बेमल, ये 5वीं कंडीशन बोलती है ना कि 2B में दिखनी चाहिए थी। बेमल बोलेगा सर ये तो सप्लायर की गलती है, तो कोर्ट बोलेगी हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम उस सप्लायर से बोलो, करेक्ट करेगा। जब 2B में दिखेगी तब दूंगा मैं क्रेडिट तेरे को, पोस्ट 1 जनवरी 2022। B2B सप्लाई B2C दिखा दी गलती से, पोस्ट 1 जनवरी 2022 2B में नहीं आएगी। यानी आपके सप्लायर को उसे करेक्ट करना पड़ेगा, B2C को B2B बनाना पड़ेगा। जब 2B में ऑटो पॉपुलेट होगी तब आपको क्रेडिट मिलेगी। अब आप बताइए, पहले चैट बॉक्स में आप लोग मुझे खुल के बता दीजिए कि देखिए 5वीं कंडीशन 2B में ऑटो पॉपुलेट हो रही हो, ये एक
एक्ट के अंदर आ गई है। अगर आपका सप्लायर अगर गलती कर रहा है ना, अब इन्हें क्या कह दिया बिमल, अब टू वे कम्युनिकेशन खत्म। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? सप्लायर और रिसिपिएंट का कम्युनिकेशन खत्म। अब कुछ नहीं, आपकी क्रेडिट किस पे डिपेंडेंट है? सप्लायर पे। अगर आपका सप्लायर टैक्स कंप्लायंट नहीं है, करेक्ट जीएसटीआर 1 नहीं भर रहा, करेक्ट जीएसटीआर 3B नहीं भर रहा, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आप लोग मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए सर 100%, और रेणु शर्मा जी मैच कर लेना चाहिए, मैच ओनली आफ्टर 1 जनवरी 2022, वो भी जीएसटीआर 2B के साथ। पहले आप लोग इस पे यस कीजिए, आप लोग पहले इस बात पे यस कीजिए कि हाँ सर ये वाली बात समझ में आ गई। कुछ साथी थे उन चैट बॉक्स में, एक साथी ने लिखा सर अब तो सप्लायर की गलती की वजह से बायर को सजा भुगतनी पड़ेगी। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाया है अब वो कहती है। यानी अब आने वाले टाइम में हमारी क्रेडिट, बायर की क्रेडिट किस पे डिपेंडेंट है? नो योर सप्लायर। अनुज जैन जी कह रहे हैं नो योर सप्लायर, यानी अगर आपका सप्लायर टैक्स कंप्लायंट नहीं है, करेक्ट जीएसटीआर 1 नहीं भरता, करेक्ट टैक्सेस जीएसटीआर 3B के जरिए नहीं भरता, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। यहां तक कंक्लूड किया। अब एक पार्ट आगे बढ़ूं। श्रेयांश जैन बोलते हैं सर बट कितना मैच करेंगे? There is month after month. Why government does not introduce GSTR 2? श्रेयांश GSTR 2 तो अब खत्म, उनने उसका राम राम सत्या कर दिया। अब तो GSTR 2, 1A, GSTR 3 कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, सब खत्म। इस बजट में तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया विमल टू वे कम्युनिकेशन गॉन। यानी जो हमारी और आपकी जो कम्युनिकेशन थी अब वो सब खत्म। अगर सप्लायर टैक्स कंप्लायंट नहीं है, करेक्ट जीएसटीआर 1 नहीं भरता, करेक्ट 3B नहीं भरता, तो आपको क्रेडिट, बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब ये समझ लीजिए। अनुज जैन जी लिखते हैं ऑल सेक्शन ऑमिटेड। चलिए वेल एंड गुड। अब कुछ चीज अच्छी करूं। अब मैंने कहा कुछ क्रेडिट आपकी 2B में आ गई। अब मैं देखता हूं कितने लोग हैं जो मुझे सही तरीके से आंसर्स करेंगे। मान लीजिए 31 मार्च को बॉम्बे से माल चला, मैं महाराष्ट्र का सप्लायर हूं। 31 मार्च को बॉम्बे से दिल्ली के लिए माल चला। अब आपको माल रिसीव होता है 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को रिसीव होता है। तो 31 मार्च की जो इनवॉइस मैंने जनरेट की थी महाराष्ट्र में, मैंने अपने जीएसटीआर 1 में चढ़ा दी, जो आपके 2B में भी आ रही है, क्योंकि मैंने 1 में करेक्ट चढ़ाई है, जो आपके 2B में भी आ रही है। लेकिन माल आपने रिसीव कब किया? 12 अप्रैल को। एक सिंपल क्वेश्चन अब जो आता है मेरे सामने और आपके सामने भी है, मार्च का 2B क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, पर आपने मार्च में गुड्स रिसीव नहीं किया। रिसीव कब किया? अप्रैल में। तो क्वेश्चन ये बना कि 2B में आ रहा है, मार्च के 2B में आ रहा है, तो क्या मैं फुल क्रेडिट ले लूं इवन दो जिसका माल मैंने कब रिसीव किया? अप्रैल में। क्या मुझे क्रेडिट मिल जाएगी मार्च में? से यस एंड नो, यस एंड नो कीजिए। सर नहीं मिलेगी, क्योंकि एक कंडीशन है ना, आपकी गुड्स भी रिसीव होनी चाहिए। 5 कंडीशन हो गई ना, 5 में कंडीशन है गुड्स भी रिसीव होनी चाहिए। यानी 2B में आने के बावजूद भी आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अब मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि 2B में नहीं आ रहा, अब आपको क्रेडिट मिलेगी। 2B में नहीं आ रहा, पूछ लूं पहले चैट बॉक्स में पूछ लो, जिससे मुझे भी मजा आए और मैं आपका टेस्ट भी तो ले लूं। नहीं मिलेगा। 100% मिलेगा सर। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अगर
सिंपल आंसर होता तो फिर बिमल जैन की जरूरत कहाँ है। 2B में नहीं आ रहा, फिर भी आपको क्रेडिट मिलेगा। एग्जाम्पल सुनिए, आप कौन से एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी और IGST पे करते हैं। अभी भी जो ऑटो पॉपुलेशन है ना, आइस गेट से GSTR 2B में स्ट्रेंथन नहीं हुई है। अभी तो क्या करना पड़ता है, इन लोगों को इंटीग्रेट, एक प्रोसेस ने डिफाइंड किया हुआ है, प्रोसेस डिफाइन किया हुआ जिसके जरिए हम आइस गेट से 2B को कनेक्ट करते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो IGST हमने पे किया तब वो जाके दिखती है उसके अंदर। पहला पार्ट। दो एग्जांपल दूं और भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है, रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, एज ए बायर आप पे करेंगे, रिसिपिएंट पे करेगा, एम आई राइट। तो मान लीजिए आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई स्पेसिफाइड गुड्स या स्पेसिफाइड सर्विसेज, हमारे रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन डिफाइंड है। गुड्स के लिए 4/2017, सर्विसेज के लिए 13/2017। आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल लिया, बट रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है। अब वो क्या 2B में ऑटो पॉपुलेट होती है? नहीं होती सर, नहीं होती। तो जब आप पे करेंगे तब आप लेंगे, इवन तो 2B में नहीं आ रही, पर आपको क्रेडिट मिलेगी, मिलेगी। डू यू ऑल एग्री? प्लीज टेल मी। पहले मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर बिल्कुल यस मिलेगी, इवन तो 2B में नहीं आ रही। यस, यानी अब आपके चैट बॉक्स में यस आ गया, मिलेगी। तो यानी मैंने 5वीं कंडीशन के साथ छेड़खानी की। 2B में आ रही है तो भी नहीं मिलेगी, गुड्स वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, और 2B में नहीं आ रही तो भी मिलेगी, ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। तो यानी सिर्फ लॉ को बेयर एक्ट के हिसाब से हमने पढ़ तो लिया, पर एडजस्टमेंट की जरूरत है। वी आर राइटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम इनसे कह रहे हैं सर कम से कम क्लैरिफाई तो कर दो, एक सर्कुलर तो इशू कर दो, कम से कम क्लैरिटी हो जाए। एंड दे आर, I can't see other participants chat. So राजेश जी आप इस चैट को पूरा ओपन कर दीजिए सबके लिए। नहीं ओपन ही है सर, इसमें तो मेरे तो कोई वो नहीं है सर इसमें। पर पंकज कुमार जी बोले मुझे दूसरे की चैट नहीं दिख रही है। ना ना, मेरा कोई इसमें कंट्रोल नहीं है सर चैट पे तो। आपका कोई कंट्रोल नहीं है? लाइए मैं नो हेल्प नो करता हूँ लोगों नो को, लाइए मैं हेल्प करता हूँ। सर हाँ करो करो सर प्लीज, मैं मेरे को करता बता भी दो सर, सिखा भी दो मेरे को। देखिए देखिए मैं करने की, एवरीवन कर दीजिए बस उसको, एवरीवन। हाँ कर दिया वो तो मैंने। अब मैंने किया ना, अब देखिए अच्छा, सबको अच्छा। चैट दिख रही है क्या? आप लोग अब चैट पे बताइए। तो तारकेश्वर जी अब सब चैट दिख रही है आप सभी को? पहले बताइए। चलिए दिख रही है, अभी भी नहीं दिख रही सर, आई कांट डू नाउ ना। अब नहीं दिख रही तो अब मुझे अपनी टॉपिक पे फोकस कर लेने दो, वरना मैं चैट संभालते रह जाऊंगा। अच्छा अच्छा सर, मिल गया मेरे को, मैं करता हूँ। चलो 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 ठीक है, अब ना ध्यान ना, से आप पूछिएगा सर। अब आप लोग बताइए, आपको चैट में दिख रहा है सब कुछ? प्लीज बताइए। गॉट इट, यस सर। यस, देखो हो आगे गया सबको, सर, देखो हो गया आपको शुरू से करना था, बेचारे इतनी देर से सर परेशान थे कि हम लोग देख ही नहीं पा रहे कुछ भी चीजें। चलो सर, बिमल जी चलो आगे से राजेश जी ध्यान रखेंगे। यस सर। देखिए आज राजेश जी को हमने आईटी में एक और चीज नहीं बता दी। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए चैट बॉक्स में क्या होता है मैं बताऊं अतुल जी, चैट बॉक्स में क्या होता है, एक तो होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि आप वन साइडेड यहाँ से करे जा रहे हैं, किसको क्या समझ में आया नहीं मालूम पड़ता। मुझे नहीं समझ में आता, मैं तो बोलता मैं जो बोलूंगा अच्छा बोलूंगा, तो चैट बॉक्स भी इसलिए ओपन करवा देता हूं कि लोग एक दूसरे की चैट देख भी पाए, समझ भी पाए। तो चलिए अब चैट बॉक्स खुल गया। आई थिंक अगर स्पीकर के साथ इंटरेक्शन हो तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग इज मच बेटर, मच बेटर। मच आई एम टेलिंग यू सर, आप 1 घंटा अपना टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के दे रहे हैं, मैं अपना 1 घंटा इंपॉर्टेंट निकाल के आपको दे रहा हूं। अगर हमने एक दूसरे को कुछ दिया ही नहीं तो हमने 1 घंटा यूटिलाइज नहीं किया। इट इज एज बैड एज रीडिंग ए बुक एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास 1 घंटे का अब टाइम नहीं है सर, हमारी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है आज की डेट में कि 1 घंटा अगर हम अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के दे रहे हैं तो ये 1 घंटे का एडवांटेज होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिमल जी 260 पार्टिसिपेंट बिमल जी हैं। आप
आप सबको इन्वॉल्व करके और सबको रहते हो अटेंटेटिव रहे कि हर बात का मतलब दे आर ऑन, ये नहीं है कि इधर उधर चले जाए, मतलब उनकी फुल्ली अटेंशन आपको चाहिए एंड सबको इन्वॉल्व करके चलते हो और हमें बड़े आराम से समझ आता है हर चीज, यू आर एबल टू, मतलब सीधा हमारे दिमाग में घुस जाती हैं आपकी बातें। राजेश जी, विमल जी का हर महीने एक जरूर ले लिया करो वेबिनार, अगर चलिए इनके सर। पास टाइम हो तो। चलिए सर, कोई इशू नहीं, आपका प्यार है, दैट्स इम्पोर्टेंट। सो श्रेयांश जैन बोलते हैं कि मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 5वां कंडीशन की जीएसटीआर 2B में आना चाहिए, बट उसमें भी हमने इफ एंड बट्स दोनों डाल दिए। आ रहा है तो भी नहीं मिलेगा और नहीं आ रहा है तो भी मिलेगा। अब इस बजट में क्या हुआ राजेश भाई मालूम है? इस बजट में हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 6वीं कंडीशन डाल दी। अब 6वीं कंडीशन अगर आप लोग सब सुनेंगे ना तो यू विल अमेज्ड। पहले मैं सुना दूं फिर मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। 6वीं कंडीशन ये डाली गई कि अगर आपके 2B में आ रहा है, पर उन्होंने कहा कि अगर सेक्शन 38 में जाके अगर हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो आपके 2B में आ रहा होगा फिर भी आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। यानी एक होती ना, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। सीना जोरी, तो हमारे क्रेडिट के लिए ना यही हाल हो रखा है। 6वीं कंडीशन फाइनेंस बिल 2022 जो फाइनेंस एक्ट बन गया 2022 का पार्ट है, उसमें उन्होंने ये कहा सब क्लॉज BA अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज B इंसर्ट होगा और वो क्लॉज ये बोलता है बिमल 2B में आ गया जो एज पर सेक्शन 38, लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी इवन दो वो आपके जीएसटीआर 2B में दिख रहा होगा। अब ये 6 कंडीशन हैं क्या, 6 रेस्ट्रिक्शन है क्या, रादर 6 रेस्ट्रिक्शन है क्या, वो सुन लीजिए आप। 6 रेस्ट्रिक्शन में पहली रेस्ट्रिक्शन कि मान लीजिए आपने किसी सप्लायर से माल लिया और उसने पहली बार रजिस्ट्रेशन लिया है लॉ में, तो गवर्नमेंट देवेंद्र जी बताऊंगा मैं, बट नोटिफिकेशन येट टू बी इशूड। देवेंद्र जी हमारे पैनलिस्ट हैं, सो देवेंद्र जी जीएसटी करते हैं, तो उन्होंने एकदम एक्सपर्ट कमेंट साथ साथ डाल दिया। देवेंद्र जी मैं सबको बता के, मैंने कहा ना कि कोई टॉपिक का एक कॉर्नर नहीं छोड़ूंगा, अभी आप मेरे साथ सुन लो। डिपार्टमेंट में ही बैठे हैं सर वो मैं इसीलिए अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ और प्लस बोल रहा हूँ सर मुझे मौका दे दो, पहले मैं बढ़ूं फिर मैं बताता हूँ। सुनो सर, अगर कोई फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो यानी हमारे ये जो लोग हैं ना, ये लोग समझ गए होंगे ना, हमारे डिपार्टमेंट जीएसटी जो लेजिस्लेटर बनाते हैं, उन्होंने कहा बिमल ऐसे केस में हम स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहा होगा। यानी आपके 2B में दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपने उस स्पेसिफाइड पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लिया है अगर उससे माल परचेज किया गुड्स और सर्विसेज, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। मैंने इनसे पूछा सर ऐसा क्या है, आप ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने कहा बिमल आपको नहीं मालूम है, ऐसे कई बंदे हैं जिनके बारे में हमें इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है कि ये लोग कुछ फेक में इन्वॉल्व हैं या कुछ ऐसे सप्लायर हैं जो वल्नरेबल हैं, तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ऐसे सप्लायर को। तो सर अब आप समझ लीजिए 2B में आएगा, लेकिन अगर जिसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लिया और वो वल्नरेबल है और गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि इस सप्लायर से माल लिया तो इस पीरियड तक आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो 2B में रहने के बावजूद भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। पहली रेस्ट्रिक्शन। दूसरी रेस्ट्रिक्शन, अगर आप डिफॉल्टर हैं या आपका सप्लायर डिफॉल्टर है इन पेमेंट ऑफ टैक्स and that continues for specified period, तो उन्हें कह दिया बिमल सेकंड रेस्ट्रिक्शन 2B में आ रहा होगा बट फिर भी मैं आपको क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। तीसरी कंडीशन,
आपने जो अपना आउटपुट टैक्स जीएसटीआर 1 में दिखाया, मान लीजिए 1 लाख रुपए दिखाया, या आपके सप्लायर ने 1 लाख रुपए दिखाया, और 3B में आपने 50,000 का पेमेंट किया, तो 50,000 का डिफरेंस आ गया ना। उन्होंने कहा बिमल, अगर ये डिफरेंस स्पेसिफाइड लिमिट से बाहर होगा, एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट, तो हम तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि 2B में आने के बावजूद भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो आप समझ लीजिए अब आने वाले दिनों में क्रेडिट लेना कितना आसान होने वाला है। अभी तो हम आईटीसी मैचिंग और मिसमैचिंग की बात कर रहे थे। तीसरी रिस्ट्रिक्शन, चौथी रिस्ट्रिक्शन, आपने 3B में क्रेडिट ले लिया बट 2B से मैच नहीं कर रहा। एग्जाम्पल ले ले, 1 लाख की क्रेडिट ले ली और 50,000 रुपए 2B में आ रहे हैं, एंड दैट इज क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट। ये स्पेसिफाइड अभी आएगा, अभी कुछ आया नहीं है, आएगा। मान लीजिए 10% का वेरिएशन या 20% का वेरिएशन, अगर उससे बियॉन्ड हुआ तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन कि 2B में आ रहा होगा फिर भी आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। 5वीं कंडीशन, एंड बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन, राजेश भाई आपका ई क्रेडिट लेजर है, आपका ई क्रेडिट लेजर है, आप ही का है ना। मैं आपसे बोल सकता हूं कि आप पूरा अपना ई क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते, मैं कह सकता हूं क्या? आप बताइए, मैं कह सकता हूं क्या? नो सर, नो, नहीं कह सकता, पर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम तो सब कुछ कह सकते हैं। उनने ये कह दिया कि हम आपके लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आप अपना पूरा ई क्रेडिट लेजर भी यूज ना कर पाए। 99%, 98%, 97%, जो परसेंटेज इनको अच्छा लगेगा, इनको ये कह देंगे कि आप इतना ही यूज कर पाएंगे। अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया ब्लॉक, तो दैट इज अनदर रिस्ट्रिक्शन, 5th रिस्ट्रिक्शन, कि आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा बट आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। इस पोजीशन पे राजेश जी, इस पॉइंट पे मैं बताऊं और मेरे जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको बताऊं, जीएसटी क्यों गुड एंड सिंपल नहीं हो पाया मालूम है सर? इनकी मनसा, द ऑब्जेक्टिव एंड विजन फॉर गुड एंड सिंपल एक्चुअली परपिकुलेट डाउन नहीं हो पाया। एक होता है ना, मेरी इच्छा होती है सबको प्यार करना, तो वो प्यार झलकना चाहिए, दिखना चाहिए, राइट? एक बंदा होता है मैं तो भगवान पे बहुत भरोसा करता हूं, तो वो उसके आचरण, बाय डीड, वर्ड्स एंड एक्शन में दिखना चाहिए। हम कहते हैं ना, जो बंदा वचन से, मन से, काया से, हम 3 वर्ड यूज करते हैं ना, मन वचन काया से, जो करता है वही उसका रियल ऑब्जेक्ट होता है। इनका कहना कुछ है, करना कुछ है, करना कुछ है। देखिए मैं मोदी जी को बहुत चाहता हूं, बल्कि कहना ही कहना है सर, करना कुछ नहीं है, कहना ही कहना है। विमल जी, आप तन मन काया से कहते हैं ना, वो तन मन धन चाहते हैं। इधर एक चीज बताऊं, मैं उनको बहुत चाहता हूं। एज पर नेशन ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें ना, तो मेरी दूसरी चॉइस नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि जो ग्राउंड लेवल पे जिस हम ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मुझे पता कई बार ऐसा लगता है कुछ डिस्कनेक्ट है। कोई बंदा जाके उनको बताए, सर ये जो आपको बता रहे हैं ना, जो फीड कर रहे हैं ना, ये आपको रियली फीड सही नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपको सब टोपीबाजी बता के आ रहे हैं। सर कहा जाता था एक ब्यूरोक्रेसी एक लॉबी होती है, ब्यूरोक्रेसी एक लॉबी होती है, और एक होते हैं हमारे ये पार्टी जो 5 साल में जीत के आते हैं। ये ना हमारा जो लॉ की जो मंशा है ना, वो रियल ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाई। अब आप मेरा ई क्रेडिट लेजर मुझसे ही कहेंगे बिमल तू 99% यूज कर पाएगा, 1% यूज नहीं कर पाएगा, ये कैश से पे कर, मेरे क्रेडिट में पैसा खड़ा होगा फिर भी मुझे कैश से पे करना पड़ेगा। ये किस तरह की कंडीशन, और ये कंडीशन लगा के आप क्या प्रूफ करना चाहते हैं? अरे आप सबको अगर एक ही नजरिए से देखें कि सब चोर हैं, आप एक स्पेक्स लगा लीजिए लाल वाला, आपको सारे लाल लोग दिखेंगे। आप सबको चोर क्यों मानते हैं? हाँ, हर सिस्टम में 5-7% चोर हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट चोरों को देख के लॉ थोड़ी बनता है। लॉ तो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर को देख के बनता है ना।
आप उसके लिए जीना दुश्वार कर देते। चलिए 5वीं रेस्ट्रिक्शन, 6वीं रेस्ट्रिक्शन उन्होंने कहा विमल एक तो वीटो पावर हम अपने पास रख लेते हैं। वीटो पावर क्या होती है मालूम है? जब हमारे मन में जो आएगा, मान लीजिए विमल अगर मुझे समझ में नहीं आया तो अगर विमल से आपने मान लिया ना क्लास ऑफ पर्सन, आपको क्रेडिट नहीं लेने दूंगा इवन तो 2B में आ रहा होगा। यानी पहले 5 कंडीशन कौन कौन सी थी? गुड्स, आपके पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी हो, गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर लिए हो, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, आप रेगुलरली जीएसटी का रिटर्न भर रहे हो, एम आई राइट? 5वीं कंडीशन 2B में आ रहा हो 1 जनवरी 2022 से। 6वीं कंडीशन फाइनेंस बिल 2022 के विमल 2B में आ भी रहा है ना, तो भी तू 6 रेस्ट्रिक्शन चेक कर लेना, उसके बाद तुझे मिलेगा। और 6 रेस्ट्रिक्शन क्या हुई? अगर फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन लिया स्पेसिफाइड पीरियड, आप अगर डिफॉल्टर इन पेमेंट ऑफ टैक्स है स्पेसिफाइड पीरियड, जीएसटीआर 1 और 3B नहीं मिल रहा स्पेसिफाइड लिमिट पे तो एक और रेस्ट्रिक्शन। 4थी कंडीशन क्रेडिट जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2B बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट। 5वीं यूटिलाइजिंग योर ई क्रेडिट लेजर बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट। और 6वीं कोई भी स्पेशल क्लास। अब इतना सुनने के बाद राजेश चौधरी जी हैं, उन्होंने मेरी मन की बात छीन ली। मुझे कई बार लगता है क्रेडिट देना भी चाहते हैं क्या? इनकी मंशा है कि क्रेडिट देना है इनको। मुझे तो लगता है सांप सीढ़ी का जो खेल खेलते नहीं हम लोग, कि 100 तक पहुंचना है और 100 तक पहुंचने के लिए बीच में हर जगह पे उसने स्नैक्स बैठा रखे हैं। मुझे क्रेडिट में यही दिखता है सर, क्रेडिट सीमलेस नहीं है, क्रेडिट सीमलेस नहीं है सर। मैंने अपने ट्विटर पे ना एक ट्वीट किया था और ट्वीट आज मैं आपको पब्लिक डोमेन पे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं बाहर किया था, पब्लिक डोमेन पे है मेरे ट्विटर अकाउंट पे, आप जाके देखिएगा। अगर आप लोग ट्वीट पे नहीं है तो ट्वीट पे फॉलो भी कीजिए। तो उस ट्विटर अकाउंट पे मैंने क्या क्वेश्चन डाला था मालूम है? आनंद भाई ध्यान से सुनिएगा, अश्विनी जी, अतुल जी, राजेश जी, देवेंद्र जी अब गाड़ी में बैठ गए हैं, तो अब डिपार्टमेंट से आके वो गाड़ी में बैठ के सुन रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने ट्वीट ये डाला था, मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये लोग तो आप सब समझ गए होंगे ना। अब तो ये लोग मतलब ये हमें क्रेडिट देना ही नहीं चाहते। जो सीमलेस वर्ड हमने यूज किया था ना, उसकी तो धज्जियां उड़ा के रख दी है। जब ये मुझे क्रेडिट देना ही नहीं चाहते तो बेटर है बंद कर दे, आईटीसी बंद, हम नहीं लेंगे आईटीसी। इतना झंझट कौन पालेगा? अब रेणु शर्मा जी बोलेंगे 2A से मैच कर, 2B से मैच कर, ये भी कर, वो भी कर, मैच करने के बाद भी लेना पड़ेगा, नहीं आ गया तो भी नहीं लेना। इतनी चीजें करेंगे तो हो गया काम। वो क्लाइंट देता ही पैसे उतने हैं, और वो भी अगले साल। इस साल के पैसे अगले साल, इस साल तो मिलते ही नहीं है। तो इन्हें सारी सिस्टम का जो है ना, आईटीसी देना ही नहीं चाहते। जब देना ही नहीं चाहते, जब इनकी मनसा ही नहीं है, तो बेटर है जो जीएसटी के रेट है ना उनको कम कर दो, आधे से नीचे ले आओ। 5 का 2 कर दो, 12 का 7 कर दो, 6 कर दो, मत दो आईटीसी। मैंने ये क्वेश्चन पोल किया था और लोगों से पूछा आपकी क्या राय है, आप सहमत हैं हाँ या ना? तो मैं आपसे भी चैट बॉक्स पे पूछ रहा हूँ। कई बार ऐसा लगता है ना कि जब आप देना ही नहीं चाहते मत दो, पर जीएसटी के रेट कम कर दो। एम आई राइट? प्लीज आप लोग बताइए आपकी क्या राय, आप भी यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? गुड सजेशन सर, गुड सजेशन। 95% लोगों ने ट्वीट पे मुझे कहा, मैंने पोल किया था सर, पोल कि सर आईटीसी बंद कर दो, झंझट खत्म करो, आप तो देना ही नहीं चाहते नाम का, बेहतर है कि रेट कम कर दो। लेकिन रेट कम करने का मतलब मालूम है क्या हुआ? हमने फिर जीएसटी की धज्जियां उड़ा दी। पहले प्री जीएसटी में सेल टैक्स होता था ओरिजिन बेस्ड, हम वहां पहुंच गए। जीएसटी इसलिए तो नहीं आया था, जीएसटी आया इसलिए था वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा। एम आई राइट? धज्जियां उड़ा दी सर इन लोगों ने, धज्जियां। तो सर पहला पॉइंट अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट पहले पॉइंट पे 50 मिनट लगा दिए, 50 मिनट्स एक ही पॉइंट डिस्कस करने में लगा दिए। आईटीसी विमल जी, वो सबसे जरूरी था वो। हाँ, It was सबसे an ज्यादा eye लिटिगेशन opener. भी इसी में ही है। It
और इनकी डिस्क्रिशनरी पावर इतनी है, all laws must be rational. Yes, correct. Yes, There correct. is no rationality in these provisions. Yes, need to be, and that's what is not happening, sir. And that is the reason we are raising our concern again and again. So let's conclude the first point. अब आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, पहला पॉइंट जो मैंने कंक्लूड किया, एज ऑन डेट विच इज 1 जनवरी 2022, आपको 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है क्रेडिट लेने के लिए। पहली कंडीशन, आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट की कॉपी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर लिए हो। तीसरी कंडीशन, आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, जिस पे अभी भी डिबेट है, टाइम परमिट तो मैं इस टॉपिक पे भी डिस्कस करूंगा। फोर्थ पॉइंट, रिसिपिएंट बायर रेगुलरली अपना जीएसटी रिटर्न भर रहा हो। पांचवी कंडीशन, आपके 2B में ऑटो पॉपुलेट हो रहा हो, बट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। लेकिन 2B में आ रहा है और नहीं आ रहा, वो पार्ट भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। और छठवीं कंडीशन, जो फाइनेंस एक्ट 2022 का पार्ट था, वो अभी येट टू बी नोटिफाइड है। जो देवेंद्र जी ने कहा था कि नोटिफाई होना है, येट टू बी नोटिफाइड, उसमें उन्हें 6 रेस्ट्रिक्शन डाल दी अंडर सेक्शन 38। तो मैंने इनसे पूछा था, सर आपने ये प्रोविजन तो बना दिया, अब कैसे कैसे स्पेसिफाइड लिमिट क्या होगी, कैसे हम चेक करेंगे, ये हमारे 2B में दिखेगा या मुझे देखना पड़ेगा? तो इन्होंने क्या आंसर दिया मुझे, एक लाइन में मालूम है, एक लाइन में आंसर दिया, विमल जी आप बहुत तेज भाग रहे हैं, हम बता देंगे ना आपको, समय आएगा तो बता देंगे ना आपको। यार पहले से आप सपने इतने डरावने दिखाओ, पहले से आप सपने इतने डरावने दिखाओ, और कोई पूछे तो आप क्या कह दो, हाँ हाँ हम बता देंगे। तो आप सर, मैंने भी आपसे यही कहा कि ये लोग बता देंगे सर। तो ये 6 रेस्ट्रिक्शन, तो मेरे को यही लगता भैया आईटीसी मत दो, मेरे रेट कम कर दो। चलिए, ये पहला पॉइंट आप सबके सामने। Bimal ji, don't you think that the provisions are introduced and they are thought of later? I do agree with you. यानी कोई कोर्ट ने चीजें कोई रिस्ट्रिक्शन कर दी, कोई कोर्ट अगेंस्ट कर दिया, उसको रोक देते हैं, उसके बारे में बाद में सोचते हैं। हाँ, इनका काम ही यही है सर, that is the way they are implementing GST law, and that's the reason GST is not becoming good and simple tax. कितनी अमेंडमेंट्स आ गई 2-5 साल में सर? आप समझिए, जीएसटी को हमने सबने गुड एंड सिंपल टैक्स सोचा था, सब खत्म हो गया सर। अब एक सेकंड पॉइंट लेता हूं, और सेकंड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें लिटिगेशन भी चल रही है और आपके पास भी लिटिगेशन आ रही होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए, क्योंकि जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे लगता है सब बोलूं, कई बार वो घड़ी जब देखता हूँ तब रुक जाना पड़ता है मुझे। सर, एक क्लाइंट आया मेरे पास, अतुल जी, बहुत इंटरेस्टिंग केस था। राजेश जी, आपके परमिशन में कह सकता हूँ कि टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं सर, अतुल जी उन्होंने तो कह रखा है, पर प्रॉब्लम मेरे एंड पे है। प्रॉब्लम मेरे एंड पे है। आप सुने अतुल जी, इस पॉइंट को सुने, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक क्लाइंट मेरे पास आया, आनंद भाई आपका अटेंशन चाहिए मुझे, ये भगा दो आपके सामने जो खड़ा, भगाओ इस पे यहाँ से, सामने से, बोले जा तो यहाँ से। चलो ठीक है, सुनो सर, मुझे सुन लो। देखो, इतना टाइम निकाल के मैं आता हूँ, अगर आप ही ध्यान से ना सुनोगे तो फिर जिनको नहीं देख पा रहा वो क्या करेंगे। चलिए, विनोद गर्ग हैं जो ब्रिक के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, मैं कर लूंगा। विनोद जी, आपका करके जाऊंगा, डोंट वरी। ब्रिक्स के ऊपर नए प्रोविजन चेंज हुए हैं तो जरूर मैं करूंगा। अभी पहले दूसरा पॉइंट आप सुनिए, फिर ब्रिक्स पे ले लूंगा। आनंद जी, एक क्लाइंट आया मेरे पास और क्लाइंट ये कहता है, सर मेरे पास एक बंदा आया और मुझसे कहता है कि तुझे ए से माल खरीदवा दूंगा और तेरा माल सी को बिकवा भी दूंगा। तो मान लीजिए मैं बी बन जाता हूँ, बिमल बी बन गया। अब आनंद जी मेरे पास, आनंद जी लाइटर मोड पे बोल रहा हूँ, है आनंद जी मेरे पास आते हैं, बिमल ए से माल खरीदवा भी दूंगा तुझे और सी को माल बिकवा भी दूंगा, 2% 3% की तेरी मार्जिन होगी, तू कमा ले बैठे बैठे। हुआ है ना जीएसटी में बहुत सारा।
जम के किया है लोगों ने, बिंदास किया है लोगों ने। खूब हुआ, ऑनेस्ट भी हुए हैं वो। सो आनंद भाई क्या हुआ? आनंद जी सुनिए फिर हुआ क्या। अब बेमल 2-3% का आपने मुझे लुभावना ऑफर दिया, मतलब बैठे बिठाए, वो बोलते ना क्या, एक कहावत भी कुछ है ना, क्या लगे ना फिटकरी, हींग लगे ना फिटकरी, हाँ हींग लगे फिटकरी। ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए आए। सो मैंने बोला बैठे बैठे आनंद जी सप्लायर लेके आ रहे हैं और आनंद जी कस्टमर लेके आ रहे हैं, बस मुझे अपने बीच में इनवॉइस फाड़नी है 2% की। तो 100 रुपए का माल लिया और 102 में बेचना है। और वो भी उन्होंने क्या कहा, बेमल चिंता मत कर, ट्रांसपोर्टर भी मेरा, ए से माल उठाएगा, सी पे छोड़ेगा, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे तो बीच में सिर्फ बिल फाड़ना है 102% का। और सर वो लॉगिन आईडी भी दे देना, रिटर्न भी वही भर देगा। हाँ सर, वो भी हुआ है, वो भी खुल के जो बिंदास हुआ है मार्केट में, बिंदास। तो अब क्या हुआ, बिमल को तो आ गया लोभ और बिमल ने कर लिया काम। अब बिमल ने काम किया तो वो एक इशू उठा था जिसमें 400 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन इन्वॉल्व था। 400 करोड़ रुपीज टैक्स इवेजन मैटर, जिसमें बी ने काम सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का किया है। यानी मेरे जैसे बी बहुत सारे थे बीच में, मेरे जैसे बी बहुत सारे थे बीच में। अब रेड हुई ए के यहाँ, सी के यहाँ, बी के यहाँ भी आ गए, बी का भी बुक्स ले गए सब कुछ, और तीनों को बोला हिंदी चीनी भाई भाई, तीनों को बोला हिंदी चीनी भाई भाई। तो मैंने तो स्टेटमेंट में कह दिया कि ये सब आनंद जी ने करवाया था, आप ही आए थे मेरे पास, मैंने आनंद जी का नाम ले दिया। बोले आनंद जी हैं कौन? मतलब वो करोल बाग में रहते हैं, वहां पे करोल बाग से आए थे मेरे पास। मुझे वहां उन्हें कोई रेस्टोरेंट, मैं अभी सारे लाइट नोट पे बता रहा हूँ, वो पिक्चर चालू होने से पहले बोला था ना, जो करेक्टर है उसका रिजेम्बलेंस ना किया जाए। हाँ, कहीं लोग आनंद भाई को पकड़ लेंगे, हमारा भी काम करा दो। नहीं, डिस्क्लेमर दे दो पहले। मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया इस बात का। तो अब उन्होंने बोला ये कौन थे? मैंने आनंद भाई थे, आनंद भाई आए थे मेरे पास। तो बोले आनंद भाई है रहते गए? मैंने करोल बाग में रहते। बोले कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। आनंद भाई के वहां गए, वहां आनंद भाई का था पता नहीं। मुझसे मोबाइल नंबर मांगा तो आनंद भाई का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ। अब आनंद भाई का आता पता नहीं। अब बेमल की गई, अब बेमल करे क्या? अब बेमल को पकड़ के क्या बोलते हैं मालूम है? बेमल को पकड़ के बोलते हैं तूने जो परचेज किया है ना उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने गुड्स रिसीव किए ही नहीं है। अब कैसे एलिगेशन लगाया उनने, तूने कुछ रिसीव नहीं किए? क्या तेरे ट्रांसपोर्टर को हमने पकड़ा, ट्रांसपोर्टर से स्टेटमेंट ले लिया, ट्रांसपोर्टर बोलता है सर वो तो बिल्टी सब उसके पास पड़ी रहती थी, सारा बिल्टी उसी के पास पड़ी रहती थी, हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं था। तो बिमल जी जो आप कह रहे हो ना कि आपने माल रिसीव किया और आगे सी को बेचा, ये सब कहानी है, कुछ नहीं। आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, और आपको ये क्रेडिट जो आपने ले रखी है ना, सारा का सारा 2.5 करोड़ रुपए जमा कराओ, 2.5 करोड़ रुपए जमा कराओ। अब ये क्लाइंट मेरे पास दौड़ा दौड़ा आया, कोई राजू कुमार है, बोलते सर यूट्यूब पर पोस्ट करने के पहले ये पार्ट डिलीट करना पड़ेगा। कोई इश्यू नहीं है। देखिए कई बार ना यूट्यूब पे पोस्ट भी नहीं करना चाहिए, यूट्यूब के चक्कर में ना लोग अटेंड भी नहीं करते, बोले ठीक है यार बाद में देखूंगा। बाद में सुन लेंगे, यही बड़ी दिक्कत है। आराम तो देखिए मिलना उसको चाहिए जो मंदिर में आए, मिलना उसको चाहिए जो मंदिर में आए। अब बाद में क्या, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। अब सुनो सर, अब वो क्लाइंट मुझसे बोले सर मैं क्या करूं, मैं तो 2% पे काम किया है, अब मुझसे ये पूरा का पूरा मांग लेंगे। मैं तो गया सर, मैंने ये केस कैसे हैंडल किया और हैंडल करने का तरीका क्या है, आई एम टेलिंग यू, लिसन वेरी केयरफुली। इसका अप्रैल 1, 2022 से कोई लेना देना नहीं है, पर चूंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आज की डेट में ऐसे कई केसेस इवॉल्व हो रहे हैं। मैंने क्या किया और क्या पॉइंट लिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा सर पक्का है आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने माल रिसीव नहीं किया, मुझे क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। पर मैंने कहा सर आप एक चीज बताओ, सप्लायर ने सिर्फ मुझे ही तो माल नहीं दिया, सप्लायर ने औरों को भी माल ऐसे ही बेचा है, आपने सप्लायर को भी पकड़ रखा है,
सप्लायर को आपने अरेस्ट भी किया था, क्योंकि 400 करोड़ है तो आपने उसको अरेस्ट भी किया था। जब आपको ये लगता है कि सप्लायर ने माल नहीं भेजा और वो ट्रांजैक्शन सप्लाई चेन में गया है, तो सप्लायर से आप 100 रुपए का टैक्स तो ले रहे होंगे ट्रांजैक्शन के ऊपर। जैसे एक एनालिसिस के लिए आपके सामने रख रहा हूं, आपने सप्लायर से टैक्स ले लिया, जीएसटी वैल्यू एडिशन टैक्स है सर। वैल्यू एडिशन का मतलब ए से आप 100 रुपया लीजिए, बिमल से 2 रुपया लीजिए, और सी ने अगर 5 रुपए वैल्यू एडिशन पे बेचा तो 5 रुपए उससे लीजिए, अल्टीमेटली 107% पे माल गया। तो जीएसटी वैल्यू एडिशन टैक्स है। आप ए का भी टैक्स मुझसे ले लेंगे और मेरा भी टैक्स मुझसे मांगेंगे, ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा सर। ये नहीं है लॉ में। जीएसटी जो वैल्यू एडिशन टैक्स, अगर आप मुझसे रिसीव करना है, मुझसे 2% लीजिए, 100% के लिए तो आप उसके पास जाइए जो सप्लायर है। पहली बात मैंने ये रखी, और क्यों रखी? जीएसटी लॉ इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। तो अभी मैं जो कह रहा था ना कि आप रिडक्शन कर दीजिए जीएसटी का रेट, आईटीसी मत दीजिए, वो जीएसटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर जीएसटी जो वैल्यू एडिशन टैक्स, पहला आर्गुमेंट लिया मैंने। दूसरा आर्गुमेंट मैंने दूसरा आर्गुमेंट ये लिया, मैंने कहा सर अगर आप बी को कल्प्रिट मानते हैं, बी अगर कल्प्रिट है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट से मैंने कहा कि आपने सिर्फ ट्रांसपोर्टर से पूछा, थर्ड पार्टी का कोई भी स्टेटमेंट लेके आपने क्रॉस एग्जामिनेशन मुझे अलाउ कराया? You should have given me an opportunity for the cross examination. Third party statement, I need to be given कि मैं उसे क्रॉस एग्जामिन करूं, अदरवाइज इट्स अ वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। किसी दूसरे ने कह दिया बिमल जी तो चोर है, तो क्या बिमल जी चोर हो गए? आपको उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। सेकंड, थर्ड, अगर आपको लगता है कि सप्लायर ने चोरी की है, तो आप मुझे बताइए सप्लायर से आपने कितना कलेक्ट किया, और मैं वैल्यू एडिशन के लिए लायबल हूं। आप ये नहीं कह सकते कि उससे भी मैं 100 रुपए ले लूं और बिमल से भी 100 रुपए ले लूं और नीचे सी के पास भी जाके 100 रुपए ले लूं, तो ये तो ट्रिपल टैक्सेशन हो जाएगा सर। ये जीएसटी का मतलब नहीं है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? पहले आप लोग बताइए, 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? से यस एंड नो इन ए चैट बॉक्स, यस एंड नो इन ए चैट बॉक्स। ओके, आपको मेरी बात समझ में आ गई? सो ऑल ऑफ यू आर राइटिंग यस, दैट्स वेरी गुड। तो मैंने ये आर्गुमेंट रखे। मैंने आर्गुमेंट क्यों उठाए मालूम है? वो वैल्यू एडिशन टैक्स के लिए, जो आप जानना चाह रहे थे कि वैल्यू एडिशन टैक्स है क्या। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। ऑफ कोर्स अभी लिटिगेशन आगे चलेगा, चीजें आगे बढ़ेंगी, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व भी होगा, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आज का जो ऑब्जेक्टिव है 10 से 15 मिनट का मैं रखता हूं। कुछ चेंजेस जो अप्रैल 1, 2022 से आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिए एक के बाद एक। सबसे पहले, ई इनवॉइसिंग फॉर एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 करोड़। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है? मान लीजिए मेरे 5 रजिस्ट्रेशन है इंडिया में, पैन बेस्ड 5 रजिस्ट्रेशन है, तो आप पैन बेस्ड टोटल टर्नओवर पैन इंडिया का आप कैलकुलेट करेंगे। कब से? 17-18 से। अगर किसी भी साल में 17-18 ऑनवर्ड्स किसी भी साल में अगर 20 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया, तो ई इनवॉइसिंग इज ए मस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। किनके लिए एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट अथॉरिटी, local authority, SEZ unit, but not developer. Banking, insurance and financial companies, including NBFC, GTA, passenger transportation services, and multiplexes cinema admission, इनके लिए applicable नहीं है। अब इसमें आप करेंगे क्या? ई-इनवॉइसिंग का मतलब होता क्या है? सिंपल, जो आपके पास ERP और अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए आप एक्सेल में इनवॉइस बनाते हैं, एक्सेल में,
तो इनने आपको एक ई स्कीमा दिया हुआ है, ई स्कीमा इनवॉइस INB 01, ये कुछ नहीं है, उसमें कुछ स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स हैं जो आपके इनवॉइस पे आने चाहिए, एक्सेल पे ही आ जाए, एक्सेल इनवॉइस पे आ जाए, वो पर्टिकुलर्स आने। और फॉर्मेट का मतलब ये नहीं है इसके बाद ये आए इसके बाद, आपको बस वो स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स इनवॉइस में डालने हैं। उस एक्सेल को जेसन फाइल में कन्वर्ट करना है, यानी आपके पास कन्वर्टर होना चाहिए, यानी आपने जिससे भी अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर ले रखा है वो आपके एक्सेल इनवॉइस को विद स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स जेसन में कन्वर्ट कर देगा। जेसन में जब कन्वर्ट किया तो आप IRP जो गवर्नमेंट डेडिकेटेड इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पर डाल दीजिए। वो IRP क्या करेगा, और उस IRP का नाम है www.einvoice1.gst.gov.in। Am I right? Of course अमित जी, 17-18 में अगर मोर देन 20 करोड़ था, मैं बोल चुका कि एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 17-18 किसी भी एक साल में अगर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है और बाद में कम हो गया, आपके लिए इनवॉइसिंग मस्ट है। अगर एग्जम्प्ट टर्नओवर हो तो सर वो क्या बोलता है कि पहले आप एग्रीगेट टर्नओवर की बात करता है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, टैक्सेबल भी आता है, एग्जेम्प्टेड भी आता है, नील रेटेड भी है। अगर आप नील रेटेड को हम एग्जेम्प्टेड ही मानते हैं। ठीक है सर, ठीक। अगर आप एक्सक्लूसिवली 100% एग्जेम्प्टेड में डील करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी GST में। लेकिन ये सिचुएशन तभी अराइज होती है जब एग्जेम्प्टेड भी हो और टैक्सेबल भी हो, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा। Am I clear to all? यस सर, यस सर, Am I clear to all? यस सर। और ये B2B सप्लाईज के लिए है। किसके लिए है? B2B सप्लाईज, B2C के लिए नहीं, B2C के लिए नहीं है, B2C के लिए नहीं, B2B के लिए है। विमल जी, हाँ, जहाँ पर ये जैसे एक बार पहले मुझे खत्म कर लेने दीजिए, क्योंकि क्या होता है बीच में जैसे ही हम इन करते हैं ना, सॉरी पहले अगर मैंने ई इनवॉइस पे कह रहा हूं, मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। अगर उसके बाद आपके क्वेश्चन रह जाएंगे तो मैं जरूर आंसर दूंगा। तो मैंने क्या कहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन वंस अगेन। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पैन बेस्ड, जितने भी आपके पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन पैन इंडिया के टोटल टर्नओवर in any of the preceding financial year onward 17-18 20 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मस्ट है। किन के लिए नहीं है एक्सक्लूजन, मैंने आपको बता दिया एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं। कब एप्लीकेबल होगी? B2B सप्लाईज के लिए होगी। B2B सप्लाईज के लिए होगा क्या कि आपकी जो एक्सेल जो इनवॉइस आप अपने बिलिंग ERP सॉफ्टवेयर से निकालते हैं, निकालिए, बट आपको वो ई स्कीमा फॉलो करना पड़ेगा जिसमें स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। आप उस फाइल को, इनवॉइस को, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप IRP के ऊपर डालिए, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो गवर्नमेंट का है, www.einvoice1.gst.gov.1 इन पे डालिए। वो IRP क्या करेगा, आपका डेटा जो है उसको वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा। अगर सारी चीज मैच कर गई तो वो उसे डिजिटली साइन करेगा, उस पे QR कोड डालेगा और यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दे देगा उसको, और वो आपको वापस कर देगा। IRP आपको वापस कर देगा। फिर आप उसको किसी भी इस चीज में PDF में कन्वर्ट कीजिए, जेसन में दीजिए, जैसे आपको देना हो, अपने बायर्स को दे दीजिए। B2B सप्लाईज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। Am I clear to all? ये वाली बात मैंने आप सबको समझा दी। यस सर, यस सर। अब इसमें एक बात और कनेक्ट करूं, उसके बाद आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर आंसर करूंगा मैं। जब मैंने ये ई इनवॉइसिंग की बात कह दी
तो सबसे पहली बात ये भी आती है कि कई बार आप IRN जनरेट नहीं कर पाए, सप्लायर आपका नहीं जनरेट कर पाया, तो रिसिपिएंट पे कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सर, अगर मुझे ई इनवॉइस जनरेट करना है, IRN क्रिएट करना है, अगर वो IRN जनरेटेड इनवॉइस नहीं होगी तो बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगी, बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगी सर। बी केयरफुल, ये बायर के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो उसे आइडेंटिफाई कर ले। तो अब B2C के लिए क्या होगा सर? B2C के लिए ने कहा जिनकी थ्रेशोल्ड 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसके लिए आपको IRP पे नहीं जाना, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे नहीं जाना, आप बिल्ट इन आप अपने सिस्टम में QR कोड इफेक्ट कीजिए और B2C सप्लाईज के लिए उसको इंप्लीमेंट कीजिए। दैट इज व्हाट द क्रक्स एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके सामने डाली। अब क्वेश्चन अगर आपके हैं तो जरूर मैं आपको आंसर करूंगा। अब जैसे मान लीजिए जो आंसर चैट बॉक्स में आ रहे हैं उन्हीं को ले लेता हूं मैं। मान लीजिए एक है हमारे श्री CA सुनील साहू जी, सर इट इज एप्लीकेबल टू nil rated and exempt supplies. They are saying B2B taxable supplies, B2B taxable supplies. सुनील जी आपको मालूम पड़ गया, जब मैंने B2B taxable supplies कहा तो क्या हो गया? टैक्सेबल का मतलब that should be taxable supplies. अब एक है सलमान बोरा जी, फाइनेंशियल, देखिए श्रेयांश जैन, आप लोग फिर ना, हम लोग कई बार ना, श्रेयांश अदरवाइज मत लीजिएगा मेरे को, हम कंफ्यूज क्यों करते हैं? अगर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट GST में नहीं है तो उस पे IRN जरूरी है क्या? No. नहीं है। हमने क्वेश्चन बनाया ही क्यों श्रेयांश? मैंने कहा जो B2B टैक्सेबल सप्लाईज है उससे रिलेटेड क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट तो वो GST में ही होने चाहिए ना, तभी आपकी वो नीड अराइज होगी। श्रेयांश आप समझ गए होंगे मेरी बात, राइट? तो आप लोगों को मेरी बात, देखिए कई बार क्वेश्चन हम बनाते हैं लेकिन उनको ना हमें समझना चाहिए कि हम क्वेश्चन सही फ्रेम कर पा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एक और साथी थे जिनकी मैं बात कर रहा था, सलमान बोरा जी। अतुल जी अब आप पूछ लीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो। एक बार सलमान जी का क्वेश्चन ले लेता हूं। What if client provide the road construction services to PWD department? Whether that client e-invoice is applicable? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपका क्लाइंट अगर PWD डिपार्टमेंट को सर्विस देता है तो पहले आप लोग सबसे पहले ये सोचिए क्या ये सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए नहीं है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। Yes, sir. अब उनने एग्जेंट किनको किया? अगर मान लीजिए PWD जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आगे बिल कर रहा होगा उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट आपकी बिलिंग जब PWD को हो रही है तो उसके लिए एप्लीकेबल Applicable है। तो सलमान जी am I clear to you? सो समझा दिया मैंने। चलिए चलिए, ऑल राइट। अब अतुल जी आप बताइए। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नोएडा में, एक है कालाम में, या अलग अलग जगह पर हैं, एंड दे सप्लाई टू देयर डिपोज, दे रेज एन इनवॉइस, तो उस स्टेज में हम एग्रीगेट टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा देखिए, ये आपने अब ले लिया स्टॉक ट्रांसफर की बात। क्योंकि इनवॉइस तो कटेगा। ओह, इनवॉइस तो कटेगा। अभी हम एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं जी। तो जिसका हम अल्टीमेट इफेक्ट जब हम देखते हैं ना, एक GST वाइज तो वो उसका सेल है। अब दूसरा जो GST जहां रिसीव किया उसने भी आगे अगर सेल किया हो तो वो उसका भी टर्नओवर है। तो आपके माइंड में जो क्वेरी अराइज हो रही है वो क्वेरी ये अराइज हो रही है, क्या ये मल्टीपल टाइम ऐड हो जाएगा या एक टाइम ऐड होगा? एम आई राइट? यही आपके माइंड में बात आई? जी। मेरे हिसाब से वो वन टाइम ऐड होगा, वन टाइम ऐड होगा, मल्टीपल टाइम ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट पैन बेस्ड है ना, पैन बेस्ड होगा तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट नेट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अब जैसे सलमान जी PWD डिपार्टमेंट आपसे मांगता है, नहीं मांगता, उस पे इनवॉइसिंग जरूरी है क्या? अरे आपके बायर ने आपसे मांगा या नहीं मांगा, उस पे मेरी इनवॉइसिंग जरूरी है क्या?
ये तो सप्लायर के लिए कंडीशन है, कंडीशनल है। उसे कंडीशन है सर, कंडीशन, कंडीशनल इज डिफरेंट। कंडीशन है कि उसे रेज करना पड़ेगा। सलमान जी, वो मांगता है नहीं मांगता, मेरा बायर को चाहिए नहीं चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट। अगर सप्लायर के लिए एप्लीकेबल है तो सप्लायर के लिए एप्लीकेबल है। है, It सिंपल। is statutorily obligated. यस Yes. करेक्ट, यस करेक्ट। चलिए, अगर आप लोग मुझे मौका दें तो दो तीन पॉइंट और क्विकली टच करूं। यस सर, यस सर। अच्छा चलिए, अभी इनवॉइस पे कुछ रह गया हो तो क्विकली फटाफट बता दे, नहीं तो मैं फटाफट 2-3 पॉइंट और ऐड कर दूं। चलिए, सो यहाँ पे अभी तो मुझे चैट बॉक्स में कुछ और देखा नहीं क्वेश्चन। मनीष जी पूछते हैं, सर मूलचंद जी का एक क्वेश्चन है। चलिए, आज जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। पैनलिस्ट आप लोग आंसर कीजिए। आप जगजीत सिंह जी भी बैठे हुए हैं, NIRC मेंबर है हमारे, तो वो उनसे भी पूछ लेता हूँ मैं। एक कोई मूलचंद है, चैट बॉक्स में आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है, आप पढ़िए, would be include non-taxable supplies and B2C while calculating threshold limit of 20 crore। बताइए कौन आंसर करना चाहेगा? बिल्कुल उसमें ऐड होगी। B2C पे तो 500 करोड़ की टर्नओवर है। नहीं सर, हम ना, टोटल टर्नओवर में तो ऐड हो जाएगा। 20 बिल्कुल ऐड होगा सर, ऐड हम होगा। ना हम कंफ्यूज कर जा रहे हैं एक्चुअल में। सप्लायर ने ही इनवॉइस जनरेट करना है, सप्लायर की एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। सप्लायर की जब एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे तो उसकी सारी सप्लाईज देखेंगे आप, B2B, B2C सब देखेंगे आप, इंट्रा, इंटर, एक्सपोर्ट, एग्जिम्ट सब देखेंगे आप, तभी वो पैन इंडिया कैलकुलेट होगी ना। जी सर, जी सर। 20 लाख की रजिस्ट्रेशन हम लेते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं ना, तो उसमें सब कुछ ऐड करते हैं हम, B2B ऐड करते हैं, B2C भी ऐड करते हैं, तभी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो 20 करोड़ के लिए तो मेरी जितनी भी टर्नओवर है मुझे सब देखनी पड़ेगी, एक्सेप्ट जो GST से बाहर है, नॉन जीएसटी आइटम्स। सो नॉन GST आइटम आप एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है नहीं है। अब मैं ई इनवॉइस जो जनरेट करूंगा वो सिर्फ B2B टैक्सेबल सप्लाईज के लिए रेज करूंगा। तो मेरी ये दो बात समझ में आई नहीं आई, पहले यस एंड नो कीजिए चैट बॉक्स में। मेरी बात समझ में आई तो यस कीजिए, क्योंकि हम कंफ्यूज ना करें अपने आप को। क्लियर है ना? एक हुआ मेरा थ्रेशोल्ड देखने का तरीका और एक हुआ मैं कब, तो अब यस आ गया है सभी का, तो मान लेता हूं मेरे साथियों ने एग्री कर लिया इस बात को। चलिए एग्जेम्प्ट सप्लाईज नॉन GST नहीं है सर। नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाईज में 3 पार्ट है, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और जिसपे टैक्स नहीं लगता। एग्जेम्प्ट सप्लाईज की जब डेफिनेशन में जाए, एक नॉन GST अल्कोहलिक लीकर, वो तो बाहर ही है GST से, पेट्रोल, थोड़ी ऐड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यस। वो GST से बाहर ही है, तो उनको मैं ऐड नहीं करूंगा नरेंद्र कुमार जी। जी जी जी। चलिए अब आते हैं 2-3 चीजें फटाफट, फिर मैं क्विकली टच बेस करूं। चलिए, टाइम लिमिट संजय जी, सेक्शन 31 जैसे नॉर्मल इनवॉइस जनरेट करते थे वैसे ई इनवॉइस, कोई नया कुछ नहीं है। फिजिकल को ई बना दिया, दैट्स ऑल। टाइम लिमिट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें सब कुछ ऐसे ही होंगी। चलिए, शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज शेयर्स, ट्रेडिंग इन शेयर्स आर नॉट सर्विस में नहीं आता। चलिए ओके आ जाइए। 2 पॉइंट और करूं एंड देन आगे बढ़ूंगा। एक नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, LUT। एक्सपोर्ट करते हैं ना आप विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, LUT एक्सिक्यूट करना पड़ता है आपको। तो अगर आपने एक्सपोर्ट पिछली साल किया है तो पिछली साल की LUT को इस साल भी आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। ईयर वाइज ये चलती है ये, तो ऐसा नहीं है पिछली साल हो गया तो इस साल खत्म, इस साल लेना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन आपको ऑप्ट करना है, अगर कॉम्पोजिशन लेना है आपको तो ऑप्ट करना है। QRMP, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, ऑप्ट करना है आपको।
आप 5 करोड़ से नीचे हैं बट आप QRMP नहीं चाहते, मत लीजिए। बट अगर आप QRMP चाहते हैं तो दो चीजें, 5 करोड़ से नीचे होना चाहिए और आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। दो बातें करके आज समाप्त करूंगा जिसको आपको अपने टाइमलाइन में डाल लेना पड़ेगा। एक हमने आउटवर्ड ITC, एक मेरा वीडियो है सर, आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाइए। मैंने कई चीजें जो आपको मार्च 2022 फॉर अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए एप्लीकेबल है, मैंने 10 मिनट का एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए मेरे YouTube चैनल पे जाके। दैट इज देयर एंड फ्रीली अवेलेबल विच यू कैन वॉच। ना अब जो 2 पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंटली देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं वो ये है, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला पॉइंट कि आपको इनवॉइस सीरीज नई क्रिएट करनी है। कई बंदे ना सेम इनवॉइस सीरीज पे चल रहे होते हैं। आप नई इनवॉइस सीरीज 22-23 के लिए बनाएंगे, 22-23 के लिए बनाएंगे। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट विच इज सेकंड लास्ट एंड लास्ट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टुगेदर, सर 21-22 का प्रॉपर रिकंसिलिएशन, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई का हो चाहे वो आपका ITC का हो, प्रॉपर कीजिए। अब आउटवर्ड सप्लाई है तो कैसे देखेंगे मैं बताऊं आपको। आपकी बुक्स में कितनी टर्नओवर है, आपके GSTR 1 में आपने कितनी दिखाई और आपके 3B में आपने कितनी दिखाई, इसको मैच कीजिए प्रॉपर तरीके से। क्रेडिट जब आप ले रहे हैं तो क्रेडिट में आप कैसे मैच करेंगे, बुक्स में क्रेडिट कितनी ली, 2B में कितनी आ रही है और 3B में आपने कितनी ली। प्रॉपर रिकंसिलिएशन, मैंने कहा ना 2B में आ रही है तो भी नहीं मिलेगी और नहीं आ रही है तो भी मिलेगी, तो प्रॉपर रिकंसिलिएशन। एक क्रेडिट होती है कि विद इन 180 डेज आपको पेमेंट करना है, आपने सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया तो आपको रिवर्स मारनी पड़ेगी, रिवर्स क्रेडिट अलोंग विद इंटरेस्ट। इसका कहीं पे ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, ये मैनुअली आपको करना है, करना ही पड़ेगा along with interest at the rate of 18% per annum and reavail the credit whenever you want to take। तो यानी ब्रॉडली आपको आउटवर्ड सप्लाई और ITC का रिकंसिलिएशन, और फिर आपके लिए अप्रैल 2022 से लेके सितंबर 2022 का एक पीरियड ओपन है जो पर्टेनिंग टू 21-22। कोई आपसे दिक्कत हो जाए, ओमिशन हो जाए, एरर हो जाए, करेक्ट करने के लिए आपके लिए पीरियड है अप्रैल 2022 से लेके सितंबर 2022 तक का। यानी 21-22 से रिलेटेड कोई भी ओमिशन एंड एरर, चाहे वो GSTR 1 में आपको अमेंड करनी हो या GSTR 3B में अमेंड करनी हो, आप कर सकते हैं। सो ये रिकंसिलिएशन अगर आपने बना ली होगी तो आपको हेल्प करेगी to showcase, to show furnace in the period April 22 to September 22. Hope I'm clear to all of you. Satya Prakash ji, November 30th November is not applicable. It will first get notified. And to my mind, अभी आप ध्यान से सुन लीजिए, 21-22 की बात कर रहे हैं हम 22-23 की बात नहीं कर रहे। So, जो 30th नवंबर आप देख रहे हैं ना, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो फाइनेंस बिल में आया, 37 में जो आया अमेंड करने के लिए, 39 में जो आया अमेंड करने के लिए, वो 21-22 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है जब फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बनता है, उसके जो प्रोविजन जो नोटिफाई होते हैं ना, 21 के नोटिफाई हुए थे 1 जनवरी 2022 को। तो ये जो आप 30th नवंबर सत्य प्रकाश जी देख रहे हैं, ये 21-22 के लिए एप्लीकेबल टू माय माइंड, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव है, ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो 21-22 के लिए आपको ड्यू डेट ऑफ सितंबर 22 फॉलो करना पड़ेगा। होप गिवन द आंसर। अब मुझे इजाजत भी चाहिए, परमिशन भी चाहिए। एक दो क्वेश्चन क्विकली शिव खत्री जी पूछते हैं, पेट्रोलियम डीलर आल्सो सेल लुब्रिकेंट which are taxable e-invoice। Of course, Shiv Khatri ji, you are right। आपको उस केस में बाकी e-invoice जनरेट करनी पड़ेगी, बट नेवरदलेस 6:45 हो गए राजेश जी, मैं परमिशन चाहूंगा। मैं वैसे रात को खाना खाता नहीं हूं। और एक चीज छोटी सी मैं आप लोगों के सामने और रख दूं, एक छोटी सी चीज,
बड़ी मेहनत से इस दौरान लास्ट 1 महीने से मैंने बड़ी मेहनत की है। हमारी 7th एडिशन जीएसटी की लॉ एंड कमेंट्री बुक that is going to be launched very soon, maybe 14-15th of April और 18th April के आसपास। 18th April को हम लॉन्च कर रहे हैं। That is having all the provision of Finance Act 2022, यानी मैंने सारे प्रोविजन फाइनेंस एक्ट के जो भी हैं उसमें इंप्लीमेंट कर लिए हैं। 7th एडिशन है, लॉ एंड कमेंट्री फॉर्म में है। आई एम श्योर आपको वो बुक बहुत अच्छी लगेगी। जैसे मैं वेबिनार में मेहनत करता हूँ, वैसे ही मैं अपनी बुक पे हमारी टीम ने मिलके पूरी मेहनत की है। ऑल क्रेडिट गोज टू द टीम ओनली। मैं तो नाम मात्र हूँ, ये टीम की वजह से ही कर पाता हूँ। तो टीम के साथ बैठ के हमने बहुत कुछ चीजों को करने की कोशिश की और ये बुक आपकी 18th अप्रैल 2022 मार्केट में आ जाएगी। आप लोग इसे देखिएगा, अपने इनपुट, अपने सजेशन, अपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मैं तो आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़िएगा और पढ़ के मजा आए तो मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन होता है ना, अपने साथी को मोटिवेट करने के लिए, यार बिंदास तूने अच्छा किया, और कहीं कंस्ट्रक्टिव सजेशन हो तो बिल्कुल जरूर दीजिएगा मुझे। So with this, allow me to say thank you to each one of you for listening to me so carefully. आप लोग मेरे साथ connected रहे। So once again, विमल जी, इतने शॉर्ट टाइम में आपने ये कमेंट्री लॉन्च कर दी, इट इज कमेंडेबल, रियली कमेंडेबल, एंड ओनली यू कुड हैव डन इट, ओनली यू कुड हैव डन इट। थैंक यू, Great. थैंक Well यू done. वेरी Well मच सर done. फॉर Well अ done. वंडरफुल डेलीब्रेशन। Thank you, वैसे sir. तो Thank सर चाहने का मन ही नहीं करता, जैसे आहूजा जी को सुनने का मन करता है, सुनते ही रहो, पता ही नहीं लगता टाइम कब निकल गया, बोर तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही आपके साथ है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अश्विनी कटपालिया जी से कि वो सर वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें क्विकली सर। और हमारे जगजीत सिंह जी न्यूली इलेक्टेड NIRC मेंबर हैं, उनका भी वेलकम है, वो फर्स्ट Thank you, टाइम sir. आए हैं Thank you. इलेक्शन के बाद। Thank you. ओवर टू कटपालिया जी। Before welcoming, before saying my vote of thanks, I welcome Mr. Jagjeet Singh Ji, our newly elected NIRC member to the Pusa. Matlab they are coming for the first time on Pusa. Matlab after being elected, though he is was a regular participant, but he has come for the first time on Pusa Road Study Circle. Welcome you, sir. Thank you, And sir. I hope you will do wonders in the NIRC as you have been doing in the profession. Now I congratulate, before giving formal vote of thanks, I congratulate Mr. Vimal Jain for bringing with 7th editions on 18th April. Sir, we will definitely buy these books, go with the commentary, because I think this will be Bible. I know, like you involve everybody while आपके जो होता है ना, जब लेक्चर या जो भी आप सेमिनार में बोल रहे होते हैं, इट इज ए लाइवली डिस्कशन, एवरीबॉडी इज ए पार्टिसिपेंट। मतलब आप सबको इन्वॉल्व करके ऐसे चलते हो कि नोबडी, मतलब एवरीबॉडी हैज टू बी अटेंटिव, और हर बंदे को हर चीज एकदम से क्लियर, बिकॉज ऑल आर प्रोफेशनल्स लिसनिंग टू यू। और जो हमारे दिमाग में सो मेनी डाउट्स आर, वो बड़े मतलब क्या नाम है, लाइटली वे में यू क्लियर all the doubts. And similarly, I congratulate you for bringing this book. आप जो मतलब जो भी ये कॉमन, आप, मेरे को लगता है कि आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स आज तक आ रही होंगी, जो भी होगा, you must have included in this, and this will help all our professional brother, and we will definitely buy. Again, I congratulate you on bringing this book on 18th April. Thank you. Now, coming to फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। बाकी थैंक्स तो देखो ऐसा है, आप इन्वॉल्व करके लाइवली डिस्कशन करके सबको लेके चलते हैं। और ये जो जीएसटी में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, आपने विद इन शॉर्टर पीरियड आपने, यू हैव एक्सप्लेन्ड इन सो मच डिटेल कि अब मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, एंड यू हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, और नो डाउट्स मस्ट बी देयर, बट we have to be careful. जैसे आपने कहा ITC वो देना नहीं चाहते, तो हमें लेना कैसे है वो हमें देखना है।
तो उस चीज को कवर कर देखते हुए वी हैव टू लुक इनटू इट। और क्योंकि आप बोलने को तो मैं बहुत ज्यादा बोलता जाऊंगा, बट बेसिकली आई अंडरस्टैंड कि आपका डिनर टाइम हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आई थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर लाइवली डिस्कशन एंड एनरिचिंग आवर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच सर, Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. जी जी, बताइए।